Our today's topic is chromate and dichromate equilibrium. We will discuss how chromate-dichromate equilibrium disturbed by the addition of aqueous acid or base, and how chromate shifts convert into the dichromate and dichromate convert back into the chromate, and how they can be analyzed simultaneously by potentiometry, or more specifically by pHmetry. To understand the practical example of simultaneous determination of chromate and dichromate, first we need to consider the chromate-dichromate equilibrium. In chromate-dichromate equilibrium is dependent upon the pH of the solution. If we know that if we have a chromate solution and this is the chromate, you can consider potassium chromate or the sodium chromate as for example. So consider the potassium chromate as for example. We have potassium chromate solution and that is yellow in color. When we add some acid into it, what happened? This chromate convert into chromic acid, and that ultimately converted into the dichromate, and the structure of the dichromate is given here. It is a dimer of the chromate, and dimer in which two chromate molecules combine together and form a dichromate molecule and water in the presence of acid. So when we provide acidic medium, chromate converted into the dichromate. But in the same solution, if we have a dichromate solution and we are adding some OH ion in the term of base, you can use sodium hydroxide. So if we add some sodium hydroxide in the dichromate solution, what will happen? The dichromate ultimately converted into chromate. So the dimer again break down into the monomer of the chromate. So this monomer, or you can say monomer and dimer equilibria, or you can say chromate and dichromate equilibria, depend upon the concentration of H positive or the OH ion. So here are the equations. You can see two chromate ion in the presence of 2 moles of proton that can be get from the HCl solution converted into dichromate solution, and then water is formed. Here what will happen when dichromate is sodium hydroxide is added? It will be converted into the yellow chromate, and again water will be formed. So the base will be neutralized by the dichromate and acid will be neutralized by the chromate. Before we proceed for the simultaneous determination of the chromate and dichromate in a given sample mixture, first consider the basic term, that is the back titration. Back titration is the titration in which titrant that is normally taken in the flask do not react directly with the titrant that is taken in the burette. So the reaction is not directly happen, but instead of gradually adding the original the original reactant that react with the sample, we add at once the excess amount of the reactant that convert the sample into something else. So when we add excess amount of titrant, the sample react with the titrant with a mole ratio that is followed by the chemical equation, and the remaining titrant is left, and that remaining reactant is titrated by any other reagent. For example, we have many back titration solution. Back titration is basically done for those reactions in which are not feasible for the direct titration. That means direct titration, the one condition is that the reaction must be rapid, fast
and complete. If there is an equilibrium established between the reactants, then the direct titration is not feasible. If the reaction is slow, then direct titration is not feasible. In those cases, we follow the back titration. तो बैक टाइट्रेशन में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी सैंपल है हम उस सैंपल के अंदर एक एक्सीज अमाउंट में, ज़्यादा मिकदार में जो हमारा सैंपल है उसको जितना न्यूट्रलाइज होने के लिए या जितना रिएक्ट करने के लिए अमाउंट चाहिए टाइट्रेंट का, उससे ज़्यादा टाइट्रेंट हम डाल देते हैं। तो जितना हमारे सैंपल को चाहिए होता है वो उससे रिएक्ट कर जाता है और जितना रिमेनिंग होता है वो उसके अंदर बच जाता है। तो जो रिमेनिंग है, जो हमने खुद ऐड किया था रिएक्टेंट, वो रिमेनिंग हमारे पास बच गया क्योंकि सैंपल सारा का सारा कंज्यूम हो गया और जितना उसने रिएक्ट करना था हमें पता है कि कितना रिएक्ट किया होगा। हमें आइडिया करने के लिए हमने जो टाइट्रेंट या जो रिएक्टेंट हमने सैंपल क्लास में ऐड किया था, हम उसको किसी और रिएक्टेंट के साथ, किसी और टाइट्रेंट के साथ टाइट्रेट करके वो डायरेक्ट टाइट्रेशन के ज़रिए से हम उसको मालूम कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, वो बैक टाइट्रेशन है। So chromate and dichromate determination follows the back titration. So in back titration, what happened? First, we add an excess amount of HCl. So here we have, you can see, we have yellow and orange dots. Yellow means chromate and orange means dichromate. So we have a chromate and dichromate mixture. And in this mixture, what we use to add, we add an excess amount of HCl. Excess means large quantity that is more than the chromate present in the solution. So that can be estimated because we are going to analyze accurately, but we can estimate by any rough titration that how much chromate is present. हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें आइडिया लगाना है कि हमें कितना इसके अंदर HCl ऐड करना है, तो इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर तो हमारे पास एक फिजिबिलिटी ये है कि जब क्रोमेट रिएक्ट कर जाता है तो वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में कलर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आप देखेंगे सोल्यूशन जो है डार्क ऑरेंज कलर का हो गया, दैट मीन्स कि HCl आपका एक्सेस है। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक रफ एस्टिमेट ले लें, एक रफ रीडिंग ले लें अपनी टाइट्रेशन की, और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा HCl एक्सेस के अंदर कितना हमें HCl इसके अंदर डालना है। सो एक्सेस अमाउंट के अंदर हम HCl ऐड करेंगे एंड देन what will happen, the chromate will react with the HCl or the proton and it will be converted into dichromate because there is an equilibrium between chromate and dichromate and it will form water. So what happened, this was the sample, ये हमारा एक्चुअल में सैंपल था एंड अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस dichromate that is orange in color and all the chromate has now converted into dichromate. And because we have added HCl in the excess amount that is more than the chromate present in the sample solution, then remaining HCl is also present in this flask. So what will happen, we will add sodium hydroxide and this sodium hydroxide will react with the HCl, it will neutralize the HCl and sodium chloride is formed and water is formed, and we can detect this endpoint by the pH meter. In next step, if we consider continuous adding of sodium hydroxide after the endpoint, what will happen, now the HCl is consumed and all the HCl is neutralized and it is converted into salt and water. Now what is present in the flask, there is only dichromate is present. Now dichromate, and this dichromate we are adding sodium hydroxide, and when we are adding sodium hydroxide will be, it will produce OH ion and OH ion will convert dichromate into chromate. What will happen at the end point? At the end point, the color of the solution will become yellow because all the dichromate is now converted into
chromate. But consider, you can see there some specific doubt, that is because it is an equilibrium. इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता कि एक स्पीशी कंप्लीटली वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि डाइक्रोमेट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज़ द नेग्लिजिबल अमाउंट हमारे पास अगर डाइक्रोमेट का प्रेजेंट है या वो सारा का सारा ख़त्म कंज्यूम हो चुका है, तो इसका मतलब है कि इससे हमारी एक्यूरेसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल द डाइक्रोमेट जो है हमारे क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द experiment. What we are going to do? First we are adding HCl. HCl convert the chromate into dichromate, and HCl do not react with the dichromate. And then the remaining HCl that is present in the flask is targeted against the sodium hydroxide, and HCl is neutralized. After the neutralization of HCl, when we add sodium hydroxide, it will react with dichromate and it convert the dichromate into chromate. And again when all the chromate vanish, जब सारे के सारे डाइक्रोमेट जो है हमारे क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस वक्त जब आप मज़ीद OH आयन ऐड करेंगे तो क्या होगा, एकदम से हमारे पास pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी, और उससे हम शार्प चेंज की वजह से हम एंड पॉइंट मालूम कर सकते हैं या इक्विवेलेंस पॉइंट मालूम कर सकते हैं। So we are having the titration with sodium hydroxide. This is the titration curve. We are using 0.10 normal or the 0.10 molar sodium hydroxide solution. Starting with the orange solution. Why we are starting with the orange solution? Because we have added excess of HCl that has converted all the chromate into dichromate. So we are having only chromate and H positive mixture. So when we add sodium hydroxide, it will react with the remaining H positive, that is remaining HCl. And when all the HCl will consume, the first end point हमारे पास आ जाएगा। जब सारा HCl हमारे पास खत्म हो गया, हमारे पास फर्स्ट एंड पॉइंट आया, एंड देन डाइक्रोमेट हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। डाइक्रोमेट की pH हमारी इसी रेंज के अंदर होती है, दैट इज अराउंड 5 to 6। सो डाइक्रोमेट एसिडिक इन नेचर है। सो डाइक्रोमेट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और डाइक्रोमेट कन्वर्ट होता रहेगा क्रोमेट में। सो नाउ वी आर हैविंग dichromate and chromate mixture, and by each addition of sodium hydroxide, by each ml of sodium hydroxide, dichromate is converting into chromate। तो जैसे जैसे हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। एंड पॉइंट पे क्या है, सारा का सारा डाइक्रोमेट हमारा क्रोमेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास कोई डाइक्रोमेट मौजूद नहीं है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर दे, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन की वजह से उसकी pH जो है मेंटेन होगी, और क्योंकि बेस हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो बेस की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से उसकी pH एकदम से बेसिक रीजन में चली जाएगी, और हमारे पास शार्प एंड पॉइंट आएगा, एंड इस शार्प एंड पॉइंट से हम इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब इसी ग्राफ को अगर कंसीडर करें, सो फर्स्ट इन्फ्लेशन पॉइंट हमारे पास आया है 15 ml के ऊपर। वी आर रफली एस्टिमेटिंग, वी आर नॉट सर्कल फिट मेथड हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बट हमें पता है कि नॉर्मली हम लैब के अंदर सर्कल फिट मेथड अप्लाई करते हैं, और अगर हमें पास सर्कल फिट मेथड से शार्प एंड पॉइंट नहीं डिटेक्ट हो रहा होता तो हम उसका फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव प्लॉट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट एंड पॉइंट 15 ml के ऊपर, एंड द सेकेंड एंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है अप्रॉक्स 45 ml के ऊपर। सो नाउ कंसीडर द क्रोमेट डाइक्रोमेट डिटर्मिनेशन। अगर हम कंसीडर कर दें कि हमारे पास 50 ml का सैम्पल सॉल्यूशन मौजूद है, 50 ml हमने क्रोमेट डाइक्रोमेट मिक्सचर का, हमें नहीं पता उसमें क्रोमेट कितना है डाइक्रोमेट कितना, 50 ml का हमने सैम्पल सॉल्यूशन ले लिया, एंड इन 50 ml के अंदर हमने 25 ml 0.10 मोलर HCl हमने उसके अंदर ऐड किया, और हमें
मेक श्योर कि ये हमने जो HCl ऐड किया है हमें पता है कि HCl एक्सिस में है, दैट मीन्स कि जितना भी क्रोमेट उसके अंदर मौजूद है उस क्रोमेट से HCl की क्वांटिटी ज़्यादा ही है, ठीक है। सो और जब हमने ये HCl ऐड किया क्या हुआ, जो हमारा मिक्सचर था जिसमें ऑरेंज एंड येलो दोनों चीज़ें मौजूद हैं, जैसे क्रोमेट डाइक्रोमेट दोनों चीज़ें मौजूद हैं, अब वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है डाइक्रोमेट में। एंड जब वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हुआ, अब हम क्योंकि टाइट्रेशन की बेस की बात कर रहे हैं कि हमें कितना HCl डाला हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पे बैक टाइट्रेशन में जब भी हम कोई रिएक्टेंट ऐड कर रहे होते हैं तो हमें उसकी कंसंट्रेशन भी मालूम होती है, उसका वॉल्यूम भी एग्जैक्ट वॉल्यूम हमारे पास मालूम होता है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 25.0 ml बता रहा है कि हमने यहाँ पे पाइपेट यूज़ किए, हमने इसको प्रॉपरली मेजर करके ऐड किया है। सो हम इसके मिलीमोल निकाल सकते हैं कि HCl का कितना अमाउंट हमने ऐड किया। सो मिलीमोल ऑफ HCl, सिंपल मेथड है, मिलीमोल का मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोलैरिटी हमारे पास HCl की 0.10 मोलर है, मिली ml जो हमने ऐड किए दैट इज 25 ml, सो मिलीमोल आर 2.50 मिलीमोल। तो ये HCl वो है जो हमने ऐड किया अपनी सैम्पल फ्लास्क के अंदर। नाउ जो हमारे पास कर्व आए हैं, तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास आया था 15 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडिट करने के बाद, एंड कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की 0.10 मोलर थी, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1 मोलर एंड 0.1 मोलर एंड 0.1 नॉर्मल सिमिलर है, क्योंकि यहाँ से ये सिर्फ एक OH दे रहा होता है। सो 15 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन 1.5 मिलीमोल। ये 1.5 मिलीमोल बेसिकली वो मिलीमोल हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने HCl के साथ HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कंज्यूम हुए हैं। और वो HCl कौन सा था, वो HCl था जो हमने फ्लास्क के अंदर ऐड किया था, जिसने क्रोमेट के साथ रिएक्ट नहीं किया। जो ज़्यादा या एक्सेस क्वांटिटी हमने ऐड की थी ये वो HCl है जो रिमेनिंग था हमारे सिस्टम के अंदर। सो HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल रेशियो हमें पता है, हम उसको लगा दें कि 1 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मिलीमोल HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो HCl जो हमारे सिस्टम के अंदर बाकी बचे थे रिएक्ट करने के बाद, क्योंकि HCl ने क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद जो HCl बच गए हैं वो कितने हैं, क्योंकि हमने जो टोटल ऐड किए थे दैट इज़ 2.50 मिलीमोल, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 1.50 मिलीमोल, क्योंकि 1 मिलीमोल एनीवेज ने 1 मिलीमोल HCl के साथ रिएक्ट किया है, तो 1.5 ने 1.5 के साथ रिएक्ट किया होगा। सो 2.5 में से 1.5 को माइनस कर दिया एंड देन वी आर हैविंग 1 मिलीमोल HCl। तो अब हमारे पास 1 मिलीमोल HCl आया है, ये वो HCl है जिसने क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ HCl ने क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया, तो कितना क्रोमेट था, 1 मिलीमोल HCl का मतलब है 1 मिलीमोल क्रोमेट। अब ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला इक्वेशन से, प्रोटॉन क्योंकि HCl प्रोटॉन दे रहा है, एंड क्रोमेट क्योंकि क्रोमेट रिएक्ट कर रहा है। इन दोनों का मोल रेशियो देखें तो 2:2 है, 2:2 दैट मीन्स 1:1 कि 2 क्रोमेट के लिए 2 प्रोटॉन चाहिए, 1 क्रोमेट के लिए 1 प्रोटॉन चाहिए। तो 1 मिलीमोल HCl ने 1 मिलीमोल क्रोमेट को कंज्यूम किया होगा। सो क्रोमेट सैंपल के अंदर हमारे पास कितने आए, 1 मिलीमोल क्रोमेट आए। तो अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहें, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मिलीमोल को वॉल्यूम से, वॉल्यूम इन ml हम डिवाइड कर दें। सो m मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, दैट इज मोल पर लीटर, एंड मोल पर लीटर इज द मोलैरिटी। सो कंसंट्रेशन इज 0.002 मोलर क्रोमेट हमारे पास सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। नाउ यहाँ तो हमने क्रोमेट का रेशियो लगा दी, क्योंकि हमें क्रोमेट की कंसंट्रेशन हम मालूम कर चुके हैं हमारे सैंपल में, हमें डाइक्रोमेटिक कंसंट्रेशन मालूम नहीं है क्योंकि हमारे पास इनिशियली मिक्सचर मौजूद था। ठीक है, अच्छा क्रोमेट हमें पता चल गए, लेकिन डाइक्रोमेट मालूम करने के लिए हमें कुछ यहाँ से कैलकुलेशन में यूज़ करना है, दैट इज़
कि जो क्रोमेट थे उस क्रोमेट ने डाइक्रोमेट बनाए। तो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट का क्या मोल रेशियो है, दैट इज 2:1। 2 क्रोमेट से एक डाइक्रोमेट बनेगा, ठीक है। तो 2 मिलीमोल क्रोमेट से एक डाइक्रोमेट बनेगा एंड 1 क्रोमेट से 0.5। अब ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे मिलीमोल 1 हमारे पास आया था, ठीक है। क्योंकि 1 मिलीमोल क्रोमेट हमारे सैंपल में मौजूद थे, तो 1 मिलीमोल क्रोमेट से 0.5 मिलीमोल डाइक्रोमेट कन्वर्ट हुए। अब सैंपल में फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा गुजर चुका। अब सैंपल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डाइक्रोमेट मौजूद है। अब ये डाइक्रोमेट किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे एंड अगेन क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस डाइक्रोमेट में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, वो डाइक्रोमेट भी है जो सैंपल में पहले से मौजूद, वो डाइक्रोमेट भी है जो क्रोमेट से कन्वर्ट होके आया है। देन सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास ग्राफ से आया था, दैट इज 45 पे। अब जब 45 पे हमारे पास ग्राफ से आया था, वो एक्चुअल में टोटल वॉल्यूम था सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो उसमें से फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को हमें माइनस करना है, दैट इज 15 एंड देन हमारे पास क्या आ गया 30 ml NaOH। तो डाइक्रोमेट को अगेन सारे डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज 30 ml। नाउ दिस 30 ml हम मिलीमोल निकाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के एंड मिलीमोल निकालने के बाद हम मोल रेशियो लगाएंगे। मोल रेशियो अब क्या है 2:1। 2 मिलीमोल NaOH will consume 1 मिलीमोल ऑफ क्रोमेट। मिलीमोल क्योंकि हम मिलीमोल में काम कर रहे हैं, मोल रेशियो भी लगा सकते हैं कि 1 मोल एंड 2 मोल। सो 3 मिलीमोल, क्योंकि यहाँ से 3 मिलीमोल आया हमारे पास, 3 मिलीमोल NaOH will consume 1.5 मिलीमोल डाइक्रोमेट। अब ये डाइक्रोमेट क्या है, ये टोटल डाइक्रोमेट है क्योंकि इसमें क्रोमेट से कन्वर्टेड एंड नॉर्मल जो पहले से मौजूद थे डाइक्रोमेट वो दोनों मौजूद हैं। सो डाइक्रोमेट सैंपल में कितने मौजूद थे, हमारे पास जो टोटल डाइक्रोमेट आए हैं इसमें से हम माइनस कर दें वो डाइक्रोमेट जो कि कन्वर्ट हुए थे, हमने मालूम किए थे 0.5 लास्ट स्लाइड के अंदर, तो उसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया 1 मिलीमोल डाइक्रोमेट। ये चीज़ दोबारा से सुननी थी कि इसमें हमारे पास डाइक्रोमेट जो कि सारे का सारा सैंपल अब सिर्फ और सिर्फ डाइक्रोमेट में मौजूद है, इस डाइक्रोमेट को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया और सारा डाइक्रोमेट अगेन क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए जो वॉल्यूम यूज़ हुआ दैट वाज 30 ml। इस 30 ml का मतलब है 3 मिलीमोल NaOH यूज़ हुआ है। NaOH और डाइक्रोमेट का मोल रेशियो हमने लगा दिया एंड दैट वाज 2:1। तो डाइक्रोमेट के मिलीमोल आ गए। अब ये जो डाइक्रोमेट हमारे पास बना था, इस डाइक्रोमेट में हमारा इनिशियल डाइक्रोमेट जो कि ओरिजिनली हमारे सैंपल में मौजूद था और वो डाइक्रोमेट जो क्रोमेट से कन्वर्ट होके बना है वो दोनों शामिल हैं। तो ये टोटल डाइक्रोमेट आ गए। टोटल में से हमने जो कन्वर्टेड था वो माइनस कर देंगे तो जो ओरिजिनली सैंपल में मौजूद था वो आ जाएगा, दैट वाज 1 मोल एंड हम इसको कंसंट्रेशन अब इससे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें सैंपल का वेट गिवन है तो सैंपल वेट से भी हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सारी कैलकुलेशन हम लैब में वैसे पहले भी कर चुके हैं। ना इस तमाम इक्वेशन को या चीज़ें हमने समझी हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि being an analytical chemist we need to know what is happening but it is not necessary to do all these steps all the time। जब एक बार आपको एक बात समझ में आ जाए सही तरीके से कि क्या सिस्टम में हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली आसानी से भी कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी क्रोमेट निकालने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी की ज़रूरत नहीं है, हम एक सिंपल फॉर्मूले से काम कर सकते हैं। क्या किया, जो हमारे पास टोटल ml HCl के थे, मोलैरिटी ml मोलैरिटी दैट इज मिलीमोल, मिलीमोल ऑफ HCl को माइनस कर दिया मिलीमोल ऑफ NaOH से, जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया है मिलीमोल क्रोमेट के आ गए, जो हमने मालूम कर चुके हैं पहले भी। 25 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया एंड देन ये वही तरीके से हमने 1 मिलीमोल हमारे पास डाइक्रोमेट के आए थे एंड उसकी हमने कंसंट्रेशन निकाली थी। सेकंड, अगर हमें डाइक्रोमेट के मालूम करने हैं तो डाइक्रोमेट के लिए क्या करें,
जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेकेंड ब्रेक आया है, सेकेंड वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, उसको उसकी मोलैरिटी से मल्टीप्लाई किया, दैट इज द मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें से माइनस कर दिए मिलीमोल क्रोमेट के. So what we are having twice the millimole of dichromate. अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लें कि ये हमारे पास जो डाइक्रोमेट के मिलीमोल आ रहे हैं, ये वो डाइक्रोमेट के मिलीमोल नहीं है जो एक्चुअल में प्रेजेंट है. ये क्योंकि 2 जो है ये फॉर्मूले का है, वी आर हैविंग द फॉर्मूलाज, सो दिस 2 इज रिप्रेजेंटिंग द फॉर्मूला. तो जितने भी मिलीमोल डाइक्रोमेट के इनिशियली प्रेजेंट थे उसके डबल मिलीमोल हमारे पास आएंगे अगर हम इस फॉर्मूले से यूज़ करें. एंड एक और काम भी हम कर सकते हैं कि अगर इस फॉर्मूले को डिवाइड कर दें, हम ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसको यहाँ जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्चुअल मिलीमोल आ सकते हैं. हम फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सो आप इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं. सेम हमारे पास आ रहा है 1 मिलीमोल एक्चुअल में प्रेजेंट था एंड उसके ट्वाइस ऑफ द मिलीमोल हमारे पास आ रहे हैं इक्वेशंस के थ्रू. या आप इस फॉर्मूले को इस तरह से कर सकते हैं कि 2 से हम इसको दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1.0 मिलीमोल आ जाएंगे. दैट वाज द सेम. तो ज़रूर नहीं कि हर दफ़ा आपने लंबी कैलकुलेशन ही करनी. जब चीज़ें हमारे पास मालूम हो जाए तो हम 1 स्टेप में भी कैलकुलेशन पूरी की पूरी आसानी से कर सकते हैं. कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है. So this is all, and these are the references. The experiment is basically cited by the paper, and you can ask me if you don't find it on the internet, and I will provide you. Thank you so much.